کہ نبی پاک کی نبوت میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بستی کے نبی کو روک کے رکھا کہ جی وہ نبی پاک کے بعد آ کے نبی پاک کے اچھا ادھورے سہیل کاموں بھائی، کو اور سہیل بھائی مکمل سنے تو کریں صحیح، گے. اور سہیل بھائی سنے تو صحیح، چھوڑے ہم آج نا اس علی بھائی کی براڈ کے اوپر آج ہم ایک ایسا علمی گفتگو کریں گے کہ یہ جو اس براڈ کے اوپر مطلب کہ مزہ آ جائے گا. پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے ایک مسیح موت کو آپ نے جن کو ایکسیپٹ کیا ہے تو وہ مزہ آئے گا آپ کو. تو ابھی ایک چھوٹی سی ہم علمی نے بھائی گفتگو خود ہم سے نہیں ایکسیپٹ کیا. نبی پاک کا انتہائی حکم تھا کہ میرے امام مہدی کی بیعت کرنی اور اس کو سلام پہنچانا ہے. چلے ہم نے وہ تو کر نبی لیتے پاک. وہ کر لیتے وہ او میری بات بھائی یار سنیں. میں ابھی فی الوقت نہیں آ سکتا, یہ ایک انتہائی بریلوی اور خبر میری بات مجھے آ سنیں، گئے ہیں. اور یار بات میں اس سے نہیں رک کوئی سکتا بھائی, تعفن پھیل جانا ہے, بدبو پھیل جانی ہے بھائی جان اور براڈ پہ, میں نہیں یار رک بات سکتا. تو سن لیں سہیل بھائی، کچھ نہیں ہوتا یار، میری بات سن لیں. او بھائی میں اپنے اسلام میں واپس چلا ہوں بھائی جان, اب آپ نے شیطان کے مذہب کی تبلیغ شروع کرنی ہے, میں نکل رہا ہوں بھائی. نہیں نہیں، میں نے تبلیغ کرنی کوئی نہیں، میں نے آپ سے صرف بات کرنی ہے. اور یار سہیل بھائی یار مفتی صاحب تھی ساڈا بندہ بجا آتا ہے یار. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ابھی تو میں نے کوئی بات کی بھی نہیں اور قادیانی مربی صاحب تنبیہ اٹھا کے بھاگ گئے ہیں. یہ کیا ہے یار, ماجرا ہے, کمال ہو گئی ہے. یا تو بندہ کوئی بات کرے, کوئی کچھ بھی نہیں. ابھی صرف میں آیا ہوں, انٹر ہوا ہوں تو قادیانی مربی جی دوڑ گئے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے مربی جی؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو واپس آئیں. اور میں ہی مکالمہ کروں گا آپ سے, آپ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. آئیں جی مربی صاحب. اچھا بات یہ ہے کہ لو جی فرقے بن گئے ہیں, بریلوی دیوبندی وابی, وہ پوجا تو وہ گھوڑے کی پوجا, تو وہ دم کی پوجا اور اس کی پوجا. تو آپس کے رولے ختم کر لو. مطلب یہ کہ قادیانیوں والے رولے کس نے ختم کرنے ہیں؟ سوال وہاں پہ ہی رہنا ہے. وہ تو وہاں کا وہاں ہی ہے, وہ تو نہیں ختم ہوا ابھی تک رولا. اس رولے کو کس نے ختم کرنا ہے؟ یعنی مرزا غلام قادیانی کو ماننے والوں کے اب کوئی 100 سے زیادہ فرقے خود آپس کے تم لوگوں کے بن گئے ہیں. کوئی اس کو خدا مان رہا ہے, کوئی خدا کا بیٹا مان رہا ہے, کوئی خدا کی بیوی مان رہا ہے, کوئی اس کو محمد مان رہا ہے, تو کوئی اس کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول مان رہا ہے, کوئی اس کو جناب رودر کپال مان رہا ہے, تو زرتشت مان رہا ہے, تو بدھا مان رہا ہے, تو رام مان رہا ہے, تو کرشن مان رہا ہے, تو کنیا مان رہا ہے, کوئی کرمے خاکی مان رہا ہے, کوئی بشر کی جائے نفرت مان رہا ہے. بھائی کوئی اپنا بھی تو کوئی فیصلہ کرو نا, کوئی ہمیں بتاؤ تو صحیح نا کم از کم. چلو ہمارے تو پڑ گئے ہیں رولے, تو تمہارا رولا کس نے نکالنا ہے؟ کہہ رہے تھے مربی جی کہ بڑے رولے پڑے ہوئے. شاہ جی کو کس نے اتارا ہے؟ احمد بھائی یار سہیل پائے یار, ٹاک ماسٹر صاحب یہ آپ کو زیادتی کر رہے ہیں نا پھر آپ نے یار. ٹاک او بھائی ماسٹر صحیح صاحب کیا ان کو بھائی, جوتیوں میں ہی بٹھاؤ بھائی, یہ تعفن زدہ ماحول, بدبودار ماحول ہو جاتا ہے یار, یار صاف ستھری جگہ پہ بیٹھنا یہ پسند بات نہیں نہ آتا. آپ کرو یار. یہ دیکھو پھر سہیل بھائی, جب آپ دیکھو میرے بیٹھے ہوئے, دیکھو میں جب آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں تو آپ جوتیوں میں بٹھاؤ, یہ بات تو آپ نہ کرو پھر یار, زیادتی کر رہے ہو آپ. یہ یار ویس بھائی آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے خود ہی دیکھ لو یار, ان کی حرکتیں دیکھ لینا یار, آپ ان کو ذرا ان یار کا وہ کیا عملی. کیا میری بات سنیں, کیا وہ کیا کہتے ہیں وہ یار, اگر آپ کو روحانی خزائن نہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں, انہوں نے کیا کوئی غلط ہاں بات کر دی؟ بالکل, او بھائی روحانی خزائن لاؤڈ اسپیکر پہ گھروں گھروں کتابیں بانٹو نا ویس بھائی. یہ ایک تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہو جی کتابوں میں, اوپر سے یار یہ کیسی باتیں آپ کر جاتے ہو اور یار. سہیل اگر پائے ہماری نا کتابوں, وہ روحانی خزائن جس میں اسمو ہو احمد کے مصداق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کسی اور کو ٹھہرائیں گے, اور چوک میں آپ لگا کے بیٹھے, وہاں پہ لکھا ہو کہ یہ جو جی سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے, اس کے جو مصداق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, اس کے مصداق جو ہے وہ مرزا غلام احمد ہے. اور بھائی آپ کو لوگ ٹانگ دیں گے پاکستان میں, کیا کر رہے ہو آپ یار؟ آپ کو بچانا نہیں ہے ہم نے, او بھائی یہی تو لوگ یار مار دیں گے ویس آپ کو, بھائی. گھروں سے نکال کے مار دیں گے, پھر آپ نے کہنا یار یہ کیا ہے. لوگ نہیں او چھوڑیں بھائی گے آپ ابھی کو جب کون سا کسی کو آپ, پتا چلے گا کہ آپ نے ہاں تو اس محمد کے اوپر یہ کام کیا ہے.
यार वैस भाई, आपको क्या बंदा बोले यार। बहरहाल आप क्योंकि एजुकेटेड बंदे हो, बात करने का आपको सलीका भी आता है, अच्छी आपकी तरबियत है, तो इसलिए फिर इन बातों से आप अगर लिटरेचर की ही जहाँ तक बात है तो वो लिटरेचर जो बाकी किताबों में लिखा है और जिस तरह की गुस्ताखियाँ हैं, हमारी गुस्ताखियाँ पे माज़अल्लाह पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, और जो खुले आम बाकी मज़ाहिब की जो बरेलवी धर्म है और जो दूसरे उनकी किताबों की जो गुस्ताखियाँ हैं वो सरेआम बांटी जा रही हैं। तो यार ये तो है, दोनों के लिटरेचर को तवाज़ुन के तौर से उसको सरेआम किया जाए। अवाम ने खुद फैसला करना है भाईजान। हक जो है ना वो मरता नहीं है, वो जिंदा रखता है, अपनी शनाख्त जिंदा रखता है। हम अल्लाह के फजल से अपनी जो हक है, और दूसरी बात ये इस्माउ अहमद है, हम तो उसका सिफाती नाम नबी पाक के तौर पे ही मानते हैं। और पता नहीं, मैं बहरहाल हैरान होता हूँ कि हमारी इतनी ब्रॉडें चल रही होती हैं और उस पे बरमला एक तबलीग का सिलसिला जारी है, उसके बावजूद आके फिर सुन के आके ब्रॉडों पे झूठ बोलना। सोहेल भाई ये कंफर्म हो करना। गया, सोहेल भाई नहीं सोहेल भाई वो कंफर्म हो गया। वो तो अब तो आपके जो लोग जिन्होंने नहीं भी माना था ना, वो कहते हैं कि एक रसूल की जो बशारत है ना, वो एक जो है वो मिर्जा साहब नहीं, है, वो क्लियर उसकी हो गई उसकी बात। उवैस भाई, चलो यार जो भी है, लेकिन असल में बात ये है ना कि हर चीज का तोड़ जो है ना वो दलील के साथ होता है। अगर नबी पाक ने इस पेशगोई को अपने ऊपर चस्पा किया है या कोई अहादीस से इस बात की कोई सबूत मिलता है, फिर तो बात 100% हमें आप बिल्कुल, ये तो कोई तरीका नहीं कि आप हमारी किताबों के साथ उसी को जो है कहो, जबकि आपके पास इन बातों का सबूत कोई नहीं है। बात मेरी बात होती है कि मैं सोहेल भाई बताता हूँ, सोहेल भाई को बताता हूँ मेरी बात सुने। देखें, बात ये है कि आप और मैं, पहली बात मैं ये आपको बहरहाल एक इंतहाई मौदबाना मशवरा दूंगा। एक मुनाजरा हुआ था इसी बात के ऊपर, आम नज़ीर साहब का और इब्ने माजा का ना, मियाँ फेवरेट 49 की ब्रॉड का मुनाजरा है। वो पुरानी बात है, 1-1.5 महीने। आप वो मुनाजरा लाजमी देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मैं घंटे का उसमें या बैठा 1.5 हुआ घंटे का है। मैं उसमें बैठा हुआ था। अब आप मुझे बताओ, आमिर नज़ीर साहब ने हमारी पर्चियाँ चलाई ना, उन्होंने कोई अहादीस का कोई ऐसा कोई रखा कि जी इस हदीस में इस पेशगोई के मिज़दाक जो है वो नबी पाक हैं। वो तो हमारी ही लिटरेचर की 3 पर्चियाँ लगा दी, और जिस तरह से इब्ने माजा ने कहा हाँ जी आखिरी हवाला कड्डो तशीज़ु ज़बान का, वही रह गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। और बिल्कुल वैसे ही हुआ जिस तरह इंसान डुगडुगी में बंदर को नचाता है, इसी तरह वो आमिर नज़ीर साहब ने आखिरी वो हवाला निकाला तशीज़ु ज़ुबान का, और उसमें आपके अपने मुफस्सिरान की भी तहरीरात रखी गई, जिसमें बाकायदा वो भी इस्माउ अहमद की पेशगोई के बारे में इस बात पे दलील दे रहे थे कि इस्माउ अहमद की पेशगोई जो है वो आखिरी ज़माने में जो इमाम मेहदी या ईसा अलैहिस्सलाम उसके हवाले से वो पेशगोई थी। नहीं आप नहीं लोगों के नहीं पास नहीं सोहेल अपनी भाई कोई नहीं, सोहेल भाई झूठ नहीं सोहेल भाई नहीं, ऐसा नहीं। देखिए फिर झूठ नहीं सोहेल भाई, ये बुरी बात है। देखिए मेरी बात सुने, बुरी बात है ये। बात ये है कि इस्मो अहमद को लेके मुसलमानों में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, कोई नहीं, एक हमारे में भी कोई डिफरेंशिएट नहीं है भाईजान। हम बात सुन ले। अच्छा, मुझे ये बात बताओ वैस भाई, आमिर नज़ीर साहब ने कोई कुरानी आयत रखी थी, कोई हदीस रखी थी उस मुनाजरे में? आप तो बैठे एक हमारे ये बिल्कुल भाई आए इनसे, गंगोही भाई आए, अगर इनसे बात कर। जी अहमद अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई पता नहीं पीछे हैं हमारे। अहमद भाई से बात करनी थी मुझे। यार वो मैं भी बुला रहा था। अहमद भाई आ जाएंगे तो फिर आप उनसे बात कर लेंगे। नो वर्ड टू डिस्क्राइब भाई, मैंने उनको नीचे नहीं किया मुफ्ती साहब को, क्योंकि मेरे पास तो वो टोपी नहीं है, मैं एडमिन नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि उनको जो उतार दिया गया है वो आपके मुफ्ती हैं, और हम इंजॉय करते हैं उनकी बातचीत के तरीके से, उनके अल्फाज के से, उनके तौर तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छे किस्म के मुफ्ती लगते हैं। तो आपको आपके मुफ्ती जो है वो दोबारा मिलने चाहिए, मगर मुझे ये पता नहीं है किन किन लोगों ने उनको ड्रॉप कर दिया। चले वो ही आते हैं ना, अली भाई आते हैं, उनको पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी डॉक्टर मास्टर साहब, मैं भी ये इसकी तस्दीक करता हूँ कि मुफ्ती साहब मदीना में थे तो उधर उन्होंने वो केले की जो बताई थी सारी चीजें, वो भी अच्छे मंजर से बड़े अच्छे सारे बहुत अच्छे जैसे भी है ना, वो उससे पता चलता है हमें कि हम क्या हैं और उनके। देखें, अगर आपके पास कोई मुफ्ती नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा डिफरेंस आपका और उस मुफ्ती साहब का।
अच्छा ऐसा है क्योंकि ये नो نہیں آپ دیکھیں آپ میری بات سنیں ٹاک ماسٹر صاحب, آپ یہ جو طنزیہ الفاظ کا چناؤ چوز کر رہے ہیں اور نذیر صاحب کر رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے تو آپ ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کریں نا. مفتی صاحب کی اگر آپ نے ایسے پیچھے بات کرنی ہے نا, ایسے دیکھیں سونکنوں کی طرح عورتوں کی طرح یہ باتیں کرنی ہے, یہ مردوں کا شیوا نہیں, یہ مردوں کا شیوا نہیں ہے, یہ مردوں کا شیوا نہیں ہے. یہ جو ہجڑے ہوتے ہیں نا ہجڑے, مرد بھائی سنیں, میں ان کے سامنے بھی اسی طرح بات کرتا ہوں, ان کو معلوم ہے اچھی طرح. ہاں ان کو آپ نے معلوم. کہا کہ میں نے ان کو ریموو بھی کیا ہے مفتی صاحب کو, اب آپ یہ بات آگے سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے یہ جو میں نے مذاکرن کہا تھا میں ریموو نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایڈمن نہیں ہوں اس براڈ کا. باقی رہ گیا اسمہ احمد براڈ بھائی. بات یہ ہے, براڈ کہہ رہا ہوں اویس بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو اسمہ احمد کا رولا بنایا ہوا ہے نا, یہ پتہ نہیں کن لوگوں نے بنایا ہوا ہے. قرآن کی جس آیت میں یہ اسمہ احمد ہے اس کے آگے صاف لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آ گیا تو لوگوں نے کہا یہ تو سحر مبین ہے. اور اس فکرے سے بڑا صاف ظاہر ہے کہ وہ بندہ جب قرآن آیا تو وہ آ چکا تھا. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ 1400 سال بعد کوئی آئے گا اس کی بات ہو رہی ہے. یار یہ کون کر رہا ہے یار, حمزہ کو بھی کسی نے ریموو کر دیا ہے, یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ ایک منٹ ٹھہرے یار, ٹاک یار احمد بھائی آپ کدھر ہو یار؟ یار یہ ایڈمن جو سو جاتے ہیں پھر یہ نہیں, لیکن کوئی نہ کوئی تو ایکٹیو ہے جو اتار رہا ہے. نہیں وہ مفتی صاحب کو کہہ رہا ہے بلاک کیا ہے. اچھا ہاں, اور یہ دیکھو یہ ابھی حمزہ کو بھی نیچے کسی نے اتار دیا ہے. یار ایسا کیوں کر رہے یار یہ لوگ, یار ایسے چھپ کے وار کیوں کر رہے؟ بھائی وہ جنات بھی تو مخلوق ہیں نا, مانتے ہیں نا سارے, وہ کیا پتہ کوئی یہ نذیر صاحب یا تو آپ کے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے یا عباس کے ہاتھ میں آ گئی ہے, کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں. آ ویسے گئی. ایک بات میں نذیر صاحب کی حقیقی اور سچے احمدی مسلمان کی میں تائید کروں گا, جو انہوں نے کیلے والی ویڈیو کے اشارہ دیا ہے نا مفتی صاحب کے حوالے سے, واقعی ایک ایمان افروز ویڈیو تھی, بڑا ایمان. آپ کو بھی اتار دیا, جو بولے گا نیچے جائے گا. یار بات سنو, خود ہی عزت سے اتر جاتے ہیں, میں بھی اتر جاتا ہوں. چلیں بھائی کچھ خیال کریں بھائی, میں نے تو جنوں کا ذکر کیا, کیا پتہ وہ سن رہے ہیں کہ نہیں. احمد بھائی ہوش کرو تھوڑی جی. اور اویس بھائی ٹھیک کیسے, مطلب یہ سب کو کون اتار رہا ہے یار؟ مفتی صاحب کو بلاک کر دیا کسی نے, حمزہ کو بھی نیچے اتار دیا کسی نے. چلیں کوئی نہیں, کبھی یہ مشینری یہ گرم ہو گئی ہوگی, آٹومیٹک کام کر رہی ہوگی. وہ ہم جو انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملے کرتے ہیں نا, تو یہ بھی ہم سے ہی سیکھتے ہیں نا, پھر اس پر بھی کوئی اثر نہ ہوگا مشین پہ بھی. ٹھہرے میں دیکھتا ہوں, ہمیں دیکھ کون کون رہا ہے, اس کا مطلب ہے تو ہمارے بیچ میں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ کیا ہو رہا ہے براڈ پر؟ نیچے بھی دوست سال تو تھا, یہاں سے بھی نیچے گرائی جا رہے ہیں سارے. پتہ نہیں یار, اب یہ کون ہے, میری تو سمجھ سے باہر ہے خود بھائی. کوئی نہیں گھبرائیں نا, ہو جاتا ہے کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ بات کرے بھائی. ہاں جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا چلے کرتے رہے. السلام علیکم. یہ مفتی صاحب کو کسی نے بلاک کیا ہے, یہ ایڈمن حضرات سے ریکویسٹ ہے, مفتی صاحب کو کیوں بلاک کیا گیا ہے؟ یار اب کیا پتا بھائی کس طرح, میں تو وہی اب بیٹھا ہوں, اب یہ میں تو خود سمجھ نہیں آ رہی مجھے. یہ احمد بھائی خود پیچھے کیوں ہو گیا؟ سر محترم احمد بھائی, وہ نہیں ہے, وہ پیچھے ہیں. احمد بھائی اپنی دکان چلا کے تے یاراں دوستاں نوں اودے چ بٹھا گئے تو پھر دکان تے پھر تہاڈا گھاٹا ہی پینا جی احمد بھائی. کاروبار اپنا آپ سنبھالنا پیندا ہے احمد بھائی. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو جانا جی, انج تہاڈی دکان کوئی لٹ کے لے جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ویسے بھی کیا ہوا ہے بتائیں یار یہ پتہ نہیں یار مفتی صاحب کو بلاک کیا یار, یہ مفتی صاحب آئے تھے یہاں پہ نا, تو مفتی صاحب آئے تو ان کو ڈراپ کیا ہے, پھر میں نے پھر دوبارہ اٹھایا انہیں. ڈراپ نہیں کیا, بلاک کر دیا.
نہیں نہیں وہ پہلے ڈراپ کیا ہے میں نے پھر دوبارہ اٹھایا انہیں. جب دوبارہ اٹھایا نام کیا بتائیں؟ مفتی مبشر صاحب کی یار بات میرے پاس ہاں جی جی مفتی مبشر شاہ اچھا صاحب. ایک منٹ رکیں، میں ویٹ کر میں دیکھتا ہوں. میرے بلاک لسٹ آئے گی ہمارے پاس یہاں پہ. نہیں مجھے لگتا نہیں آئے گی، لیکن میں دیکھ لیتا ہوں پھر. میرے پاس بلاک لسٹ تو نہیں آ رہی، میں نے تو چیک کیا بھائی. میں نے بھی نہیں دیکھا. نہیں بلاک میں نے 2 بار اٹھایا، 2 بار انہوں نے نیچے گرا دیا ہے. دوسری بار میں نے بلاک کر دیا. پتہ نہیں گرانے والا یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے. نہیں میں ہوں ماڈریٹر تو میں ہوں، لیکن میں نے 2 بار اٹھایا انہیں. کچھ اور مسئلہ ہوگا. مفتی صاحب گفتگو چل رہی تھی، گفتگو کے دوران جون سا پہلے ڈراپ کیا گیا، اس کے بعد بلاک کر دیا گیا. اچھا میں دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں. اور ابھی یہاں پہ کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ شاید مشین گرم ہو گئی ہے یا جن کا معاملہ ہے، تو آٹومیٹکلی سارے بھائی آپ ریکویسٹ ڈالیں کہ تو میں اٹھاؤں گا نا. ریکویسٹ تو ڈالیں آپ. قاسم بھائی ریکویسٹ ڈالیں. آپ کی آئی ڈی پرائیویٹ ہے، نظر نہیں آ رہی. بات کرے تو بات کرتے کرتے وہ نیچے چلے گئے. میں کہا شاید خود کا ٹھیک ہے، میں نے بھی چیک کیا، بلاک لسٹ نہیں ہمیں شو ہوتی. ٹھیک ہے. وہ احمد بھائی اب خود پیچھے میں اس وقت سے احمد بھائی کو بلا دو رہا ہوں. اچھا ایک منٹ رکے، میں احمد بھائی کو بتاتا ہوں، ویٹ کریں. کال کرے ڈاگ مارٹ صاحب. مجھے شک ہے آپ پہلے کہہ رہے تھے میں نے کیا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی مفتی صاحب کو کسی شیطان نام کی آئی ڈی ہے، اس بندے نے پہلے اتارا ہے اور پھر بلاک کیا، وہ بتا رہے تھے. شیطان. تو ان کے موڈریٹرز آپ تو دیکھ نہیں سکتے، ان کے سارے موڈریٹرز. ہاں میں نہیں دیکھ سکتا، وہ خود ہی دیکھیں گے. جی تو وہ اس نے پہلے اتارا ہے اور پھر ان کو بلاک کیا. ٹھیک ہے. اور جی کس نے اتارا؟ کس نے؟ جی شیطان نام کی آئی ڈی کسی کی. وہ ماڈریٹر نہیں ہے. خیر میں کہہ دیا میں نے، وہ بھی چیک کر لیتا ہے. وہ نا ولید بھائی، وہ نا جب آپ کسی کو اتارتے ہیں نا، تو جو بندہ اترا ہوتا ہے نا، اس کو اوپر نام بھی نظر آتا ہے کہ کس موڈریٹر نے اتارا ہے. اور ہاں جی تو وہ ان کو نظر آیا گا. احمد علی بھائی کو میں نے احمد علی بھائی کو میسج کر دیا ہے. ٹھیک ہے ذرا نا سویا ہوا تھا تو کنٹرول کریں آدھا گھنٹہ اور. احمد بھائی، تو دیکھتا ہوں. احمد بھائی، احمد بھائی آپ سن رہے ہیں؟ اپنی بلاک لسٹ چیک کریں. احمد بات چھوڑ دے قاسم بھائی، میں بتا دوں. جی احمد بھائی بلاک لسٹ دیکھ لیں اپنی، اگر اس میں مفتی بشر شاہ صاحب ہیں یہ کنفرم کر دیں. وہ چیک کر لیتے. یار ماڈریشن سے بھی تو ختم کرنی ہے. وہ جس نے ایسے کیا اس کو ان سے بولیں کوئی موڈریٹر ہے جس کا نام شیطان ہو، وہ ان کو بولیں دیکھ لیں اپنے موڈریٹر. وہ دیکھ لیتے ہیں بعد میں. شیطان نام کی آئی ڈی اس ٹائم نیچے شو نہیں ہو رہی. وہ ٹاک ماسٹر بھائی بھی بول رہے ہیں کہ شیطان نے شیطانی کی. اویس بھائی شیطان کون تھا؟ یار شیطان تو کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ. وہی میں کہہ رہا ہوں، شیطان تو کوئی ہے ہی نہیں ماڈریٹر نا ہمارا. نہیں کوئی نازک صورتحال نہیں ہے ٹاک ماسٹر بھائی. اب بندہ پکڑا جائے. یہ لو بندہ بس پکڑا جائے. نہیں وہ ہو جائے گا، وہ پتہ لگ جاتا ہے. وہ احمد علی بھائی چیک کریں گے، پتہ لگ جائے گا. احمد بھائی سو گئے ہیں پھر. نہیں آ جائیں گے. کہہ رہے آدھا گھنٹہ براڈ چلاؤ، کام دیکھو ذرا. کوئی بات نہیں، چلا لیں گے.
अवैस भाई चलाओ ना वलीद अवैस। भाई जी मैं जी घर हूँ, जरा कंट्रोल करें, मैं मॉडरेटर सारे खत्म करता हूँ, तो अमर भाई को कहना कि मैं बाद में घर करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप मॉडरेटर सारे खत्म करें, अवैस और मुझे रहने दें, और आमिर भाई को और पीर साहब को, बाकी साहब खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पीर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब ये जरा चेक करना यार, ये कौन, ये गायबाना हरकतें कौन कर रहा है? आप जरा जादू से चेक करें। देखें अवैस भाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम तो चेक नहीं कर सकते, अली साहब ही कर सकते हैं। और अली साहब ने किया होगा, उनको मालूम हो गया होगा। अब इस हाँ जी बात को मालूम आप हो गया ज्यादा होगा। उछाले मत। आप हाँ जी क्यों बस उछाल पता रहे लग जाएगा, आप इजी हो जाए। उनको तो मालूम है कि किसने किया है। अब आप क्यों इस बात को पकड़ के रखे हुए हैं भाई? अच्छा ठीक है यार, इसकानी मैं मजाक कर रहा हूँ यार, क्या सुबह सुबह क्या यार। कर रहे हैं आप? सुबह से एक बात को लगे हुए हैं भाई। मुमकिन है कि उन्होंने खुद किया हो, मुमकिन है किसी और ने किया हो, उनको मालूम है सिर्फ, बाकी कोई नहीं जान सकता। इस बस बात ठीक है को भाई। कुरेद के इससे क्या निकलेगा? ओके ओके, मैं चुप हूँ भाई, मैं चुप। ऐसा मत कीजिए, इससे जी बर्थडे वालेकुम होते हैं। अस्सलाम, आमिर भाई कैसे हैं? बर्थडे की तरफ मत आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमर भाई खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बात ये हुई है, जी बात ये हुई है कि यहाँ पर क्या नाम है उनका, मुफ्ती बशीर शाह। बशीर जी आए हुए थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो अचानक किसी ने उतारा या खुद वो डिस्कनेक्ट हुए, क्या हुआ वल्लाह आलम, हो जाता है। तो अवैस भाई कह रहे हैं कि देखना है किसने किया किसने किया किसने किया। भाई मुझे तो नहीं पता पड़ेगा, ना आपको पता पड़ेगा, अली साहब ही को पता पड़ेगा। और अली साहब तक बात पहुंच गई, उन्होंने देखा होगा, उनको मालूम हो गया होगा। अब उनको शायद खुद गए हैं, शायद वो बताना नहीं चाहते, जो भी है, इसके कुरेदने से क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं उनका फोन भी मुझे आया। अली फौरन उनको चेक करके ना लिस्ट से अनब्लॉक करो, उनको बुलाओ, जरा इनवाइट करके बुलाओ। बस अली साहब को मालूम है, आमिर भाई देख लेंगे, वो मसला ये है। अली, आमिर भाई मेरी अहमद से बात हुई है, वो घर पे है अभी, वो कह रहा है मैं देखता हूँ। वो देख लेंगे। और उनको इनवाइट करो। किसके साथ मुनाजरा हो रहा था उनका? कोई मुनाजरा नहीं हो रहा था, वो क्या नाम है अपना, सुहेल। वो सुहेल को तो आप जानते हैं ना, सुहेल वो नासिर। एक ही बीन, एक ही बीन है, वो आके बजाते हैं, तो उनके बीन से कोई परेशान होने की क्या जरूरत है, उसको बजाने दीजिए। तो मुफ्ती साहब को देख कर ही मुबशर को, उनको लगा थोड़ा सा गुस्सा कि मैं अपने जो है वो कादियानियत की तरफ जा रहा हूँ। कादियानियत जो है बहुत ही पाक साफ है, और जो मुसलमानों का दीन है वो बड़ा गंदा और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने इस तरह की बदतमीजी की। लेकिन ये तो तालीम मिर्जा जी की है ना। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमद भाई मौजूद हैं? मुफ्ती साहब वो बात नहीं कर सकते, संडे है तो वो घर में हैं। मैंने कॉल किया उनको, वो आधे घंटे बाद बात करेंगे। तो मैंने देखा है लिस्ट में वो किसी ने ब्लॉक कर दिया था शायद आपको, लेकिन अनब्लॉक हो गया। आप बात करें, किसके साथ बात हो रही थी आपकी? बात ये है कि मैं नहीं समझता कि अहमद ने किया हो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये है कि अभी जो है ना, मुझे रिक्वेस्ट आई है जब, तो मैंने देखा है तो अहमद अली की फ्रेंड लिस्ट से भी मैं निकल चुका था, और मैंने दोबारा अब फॉलो की है। ठीक है, इस पे बाद में ना इंटेरोगेशन करेंगे कि किसने ये किया है। अभी जिसके साथ आपकी बात हो रही थी आप जारी रखें, अभी वो आधे पौने घंटे बाद बाहर अली आएगा ना, फिर बात करेंगे। यहाँ पर बारिश भी हो रही है और यहाँ पर सुबह का टाइम है, अली भी यहाँ पर ही है, मेरे करीब ही है, तो संडे भी है, बारिश भी है, अर्ली इन द मॉर्निंग भी है। किसके साथ आपकी गुफ्तगू चल रही थी? भाई सेल नासिर साहब को बुलाएं भाई। वो सेल पता नहीं, कोई नया ही बंदा था, मैंने तो आज पहली दफा ही। नहीं, सेल नासिर तो पुराना आदमी है। और बस ये पुराने नए का पता कुछ चलता है जी। टास्क मास्टर साहब तशरीफ लाए हैं, नज़ीर साहब आए हैं, तो जी करिए, कोई बात करें शुरू, कोई मौजू फिर इल्मी। हाँ जी,
इल्मी बात करें, इल्मी बात यार। ये अपना टाक मास्टर साहब इल्मी गुफ्तगू किया करें, सुबह सुबह कोई झगड़े वाली बात ना किया करें। टाक मास्टर साहब इल्मी करेंगे गुफ्तगू, नज़ीर साहब भी करते हैं इल्मी गुफ्तगू। असल तो इल्मी आदमी तो नज़ीर साहब ही हैं, टाक मास्टर साहब तो बेइल्म से आदमी हैं। नहीं, ये नज़ीर साहब से भी बड़े इल्मी आदमी, असल में मुझे तो मालूम ही नहीं वो है सबसे कि बड़े इल्मी तो नीचे आ गए हैं जनाब। साहब आ गए हैं नीचे, सुहेल नासिर साहब आ गए हैं। हाँ जी, सुहेल साहब भी आ गए। आ जाए जी, किसी ने कोई इल्मी बात करनी है, मिर्जा कादियानी साहब की कोई इल्मी बात हमें बताएं, कोई उनके फ़ज़ाइल बरक़ात बताएं, कोई बताएं कि मिर्जा जी की ज़िंदगी कैसी थी, कैसे वो उनका सोना जागना था, उठना बैठना था, कोई खाने पीने के अंदाज, कोई हजरत साहब की कोई बोल चाल, कोई रहन सहन, घर में कैसे थे, तो अपने हुजरा ख़ास में कैसे थे, बताएं हमें उनकी ज़िंदगी के अहवाल बताइए, कोई इल्मी बात कीजिए जी। बात करें भाई। नज़ीर साहब आप बात करना चाहते हैं, सुहेल नासिर साहब आप बोलना चाहते हैं? आमिर वाबी पाइन तानू पता ही है मैं इतनी कोई बात कर नहीं सकता। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रहा था, ये मुफ्ती मुबशिर बरेलवी साहब हैं, इनसे पूछना चाह रहा था कि इन्होंने एक तहकीक रखी थी मदीने के केलों के हवाले से, तो ये हमारे सामने वो तहकीक रख दें कि ये किस तरह इस तहकीक तक पहुँचे, क्या सी इनकी कोई मेहनत थी इस हवाले से, उस हवाले से कोई हम जैसे कमज़ोर लोगों के ऊपर रोशनी डालें कि क्या तहकीक थी। बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात आपने की है। तो बिल्कुल वो आप पूछ रहे हैं कि कौन सी तहकीक थी, तो वो तहकीक मैं अभी रख देता हूँ। असल में उस तहकीक के पीछे क्या था वो सब कुछ मैं अर्ज करता हूँ। ये है वो तहकीकात जनाब, सीरतुल महदी है, हिस्सा पंजम है, सफ़ा 214 है, और कादियानियों की हदीस नंबर 1350 है। तो ये थी वो तहकीक, तो ये बेस बनी थी उस वाक़े की। तो सुनिए, ये ज़रा तहकीकात सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत बीबी साहिबा अहलिया हकीम मौलवी रहीम बख्श साहब मरहूम साकना तलवंडी ने बवास्ता लजना माउला कादियान बदरिया तहरीर बयान किया कि एक दिन आप लेटे हुए थे, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी लेटा हुआ था और मैं पैर दबा रही थी। यानी ये जो बरकत बीबी रंडी थी ना, जिसका शोहर मौलवी रहीम बख्श फोत हो गया था, तो रंडी उसी को ही कहते हैं जिसका शोहर फोत हो गया हो। तो बरकत बीबी रंडी पैर दबा रही थी मिर्जा गुलाम कादियानी के, तो मिर्जा कादियानी उसको केले दे रहा था, कई तरह के फल, लीचियां, केले, ठीक है जी, अंजीर और खरबूजों में से आपने बहुत से केले मुझे दिए। मैंने इन सब केलों को संभाल कर रख लिया कि ये बाबरकत केले हैं, इनको मैं घर ले जाऊंगी ताकि सबको थोड़ा थोड़ा केला बतौर तबरक के दूं। जब मैं जाने लगी तो हजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत बीबी को वाई बरनम दे दो, इस के रहम में दर्द है। एक्सट्रैक्ट वाई बरनम लिक्विड एक दुआ रहम की इस्लाह के वास्ते होती है। ये मुझे याद नहीं कि दुआ किसने ला कर दी। हजूर ने 10 कतरे अंदर डाल के बताया कि इस तरीके से तुमने घर जाके 10 कतरे डालने हैं। ठीक है जी, ये है वो तहकीक। ये कतरे अंदर नहीं पहुंचे, तहकीक पूरी नहीं हुई तो बंदा आगे पीछे हो गया। किधर गया बंदा? नहीं सुहेल साहब, आइए, इल्मी गुफ्तगू हो रही है, तो किधर गया? आपने वो केलों का सवाल किया था कि ये केले किसने दिए और किसने लिए, तो मैंने सबूत के साथ बात की है कि देने वाले केले हजरत मसीह साहब थे और लेने वाली जो थी वो बरकत बीबी रंडी थी, और वाई बरनम के ऊपर से 10 कतरे भी उसके रहमदानी में पता नहीं डालते हैं। तो ये तहकीकात है। आइए जी, बात कीजिए जी। सुहेल साहब तो चले गए हैं, अभी टाक मास्टर साहब हैं। टाक मास्टर साहब जी, ये अब बता दीजिएगा, ये मैंने कोई इल्मी गुफ्तगू की है या मतलब ये इल्मी नहीं है? इल्मी बात आपने की है, उनकी ख्वाहिश पर आपने एक तहकीक पेश की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो इस तहकीक को देखकर दुड़की क्यों लगा गए, हुआ क्या है? ओहो, अच्छा, ये शायद इल्मी इनको नहीं लगी।
एक और इल्मी है मेरे पास, वो हो सकता है टाक मास्टर साहब कहेंगे तो वो अगली इल्मी बात फिर करनी है मैंने, नजीर साहब, एवं नहीं करनी। नजीर साहब माइक पुटो हाँ जरा, नजीर साहब या ज्यादा इल्मी। हाँ, नजीर साहब करेंगे इल्मी गुफ्तगू। नजीर साहब इन्होंने हमें 300 यूरो दिया था ना, वो जो मिर्जा साहब ने झूठ बोला था ना कि हाँ अच्छा मसीह आएंगे तो उन पर कुफर के फतवे लगेंगे, तो इन्होंने कहा था मैं 300 यूरो दूंगा अगर मैं हार गया। नाम ये नजीर साहब इल्मी आदमी है, इल्मी आदमी है ये नजीर साहब। माइक ते पट्टो, माइक पुटो आस्ट्रेलिया च ते हुण शाम दे 6 होए ने, कोई सौन दा टाइम भी नहीं है। तुसी आस्ट्रेलिया च माइक पुटो। इल्मी नजीर साहब भी ऑस्ट्रेलिया होते हैं मेरे भाई? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया। इल्मी गुफ्तगू करनी है भाई, इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए। इल्मी हर चीज सबूत के साथ होनी चाहिए, बगैर सबूत के तो इल्मी नहीं ना बनती। हेलो नजीर साहब, इल्मी। अच्छा ये मसरूर साहब भी जो है ना वो इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं कादियानी लजना के साथ। हेलो, इल्म दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, तबलीग। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਟਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, ਓਏ ਵਾਬੀ ਮੌਲਵੀ, ਓਏ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਬਰੇਲਵੀ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ, ਓਏ ਬੱਚੀ ਬਾਜ਼। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ, ਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਰੇ ਰੱਬ ਜਲਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ है। नासिर साहब आप नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर तशरीफ लाए, हुआ क्या है भाई? तहकीक देखकर आप धुड़की लगा रहे। अभी तहकीक मुकम्मल भी नहीं, अद्धी तहकीक हुई है तो आपने धुड़की लगा दी यार। अगली तहकीक सुन ले जी। किताब का नाम है जिक्र हबीब और मुफ्ती मोहम्मद सादक साहब की किताब है, जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी के 313 साहबियों के अंदर शामिल हैं। और ये किताब कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर भी रखी है, और ओल्ड एडिशन का सफ़ा नंबर 38 है, और नए एडिशन के अंदर पता नहीं सफ़ा क्या है, वो देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। कहते हैं हज़रत मसीह मुतरलह शलवार के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हज़रत साहब बैठ कर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहाँ एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के गड़े रखे थे। वहां अपने कपड़े उतार कर और नंगी बैठकर नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ रहे और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादिमा इत्तफाकन आ निकली। उसने उस नीम दीवानी को मलामत की कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक़्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया, उन्हों को जो वेंदा है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। तहकीक अगर मेरी कोई अधूरी हो, कोई गलत हो, कोई बात मैंने गलत की हो तो को बता दे भाई। मैंने इसके ऊपर कोई हाशिया नहीं लगाया, सिर्फ इबारत पढ़ के सुनाई है। सादे मोहतरम ये वही है बानो रजाई वाली जिसका नहीं, बानो रजाई वाली नहीं है ये बानो नंगी होने वाली है। ओके सॉरी बानो 2-3 हो गई हैं, अब मसला हो नहीं। इस पे तो सवाल भी बनता है कि क्या मिर्जा साहब को वाकई कुछ नहीं दिखता था? टाक मास्टर साहब, इस रवायत से आप क्या समझते हैं? वाकई कुछ नहीं दिखता था या शोर नजरों से देखते थे, यानी कि नीम व आंखों से बंदा जिस तरह चाहती आता है क्या चक्कर क्या? मुझको यारो माफ रखना, मैं नशे में हूँ। अच्छा रख। केड़ी पीती जे, कोको वाइन के टानक वाइन? केड़ा नशा कर दे हो टाक मास्टर साहब? कोको वाइन के तो नहीं कोई कोट लगाया हुआ आपने? भुल गया जे, शराब का नाम भुल गया? नहीं, उन्होंने बोलिया नहीं जा रहा नशे की वजह तो। नशे की वजह तो बोल दिया। हले सवाल कह रहे ने कि जो उन्होंने नजर नहीं सी आंदा ते लिख किस तरह लैंदे सी, यही तो सवाल असी कर रहे हैं मोहतरम।
ਕਿ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ? ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਜ਼ੀਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਨਜ਼ੀਰ? ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਆਮਰ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗਿਆ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਤੇ मैं पेशेंट हैंडल करता था, तो उन्हें मैंने ना फ़ोन किया, मैं कहना जब भाई मेरे को ना रात को ट्रिप नहीं देना। मैं क्यों? मुझे रात को नज़र नहीं आता। मिर्ज़ा साहब को किधरे शायद ये होवे कि रात को नज़र ना आंदा होवे ते दिहाड़ी आंदा होवे। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 60 ਬਾਈ 60 ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੰਗੀ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, 20 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰਤ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਖੜਖੜ ਹੋਈ, ਕਿਆ ਸੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦਿਖਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਗੇ ਨਾਲ, ਜੱਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, AI ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ AI ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਹਾਉਂਦੇ ਜਿੰਦੀ ਨੇ ਸਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਨੰਖੀਆਂ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਝਾਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਵੀ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ? ਜੀ ਸੀਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਜਨਾਬ, ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਅੰਦਰਾਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਕਰ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। टाक मास्टर साहब आप ही आ जाए, कोई नींबू पानी पी के थोड़ा सा नशा उतारें, तो आइए थोड़ा सा आप रोशनी डालिए इसके ऊपर, इल्मी गुफ्तगू के ऊपर। जो आपके हजरत जी मसीह साहब की बात है, कोई किसी गैर की बात तो नहीं है। जब मसीह साहब की बात हो ना, तो वैसे तो ये नशे के अंदर ही समझ आती है, तो लेकिन चलो आप हमारे लिए थोड़ा सा मेहरबानी करें, नशा उतारें अपना। कोई नींबू पानी पिए, कोई या बैतुल खला जाएं, जैसे मिर्जा साहब अपना नशा उतारने के लिए बार बार बैतुल खला जाते थे, दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर। तो आप भी थोड़ा सा करें। वो पहले ही पता नहीं लटरीन में बैठे हैं। हेलो टाक मास्टर साहब। यार मॉडरेटर आपको नीचे से बुलाए ना उनको, जो कहते थे तहकीक करवानी है, तहकीक करवानी। हम खुद तहकीक में फंस गए हैं, हमारी मदद करें आगे यार। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। एक बात करनी है अभी आमिर भाई, पिछली रिकॉर्डिंग भी जारी है। ये अहमद ने ना कोई मॉडरेटर शैतान किस्म के लोग बनाए हुए हैं, और उस रिकॉर्ड नहीं, एक मिनट सुने तो सही ना, उस रिकॉर्डिंग में हर चीज मौजूद है, कमेंट तक भी मौजूद है, हर चीज, क्योंकि ये अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, उसी वक्त की चल रही है।
अच्छा, उनमें से एक बंदा भी अभी मौजूद नहीं है, वो सारी भाग गई। अली मॉडरेटर सारे हटा दे, केड़े मॉडरेटर मैंने उन्होंने लिस्ट कर दे। और उनमें से एक बंदा भी इधर मौजूद नहीं है, सारे तितर बितर हो गए। शाह साहब मैं भी मॉडरेटर हूँ। नहीं नहीं, अभी आप तो उस टाइम नहीं थे, आपको नहीं पता क्या हुआ है। आज बड़ी गेम हुई है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। तहकीक शुरू होने लगी है ते तूफान आ गया, नेरी बदल आ गया। चंगी भली तहकीक होंदी। हाँ जी भाई, ऊपर आओ ना। सैल नासर साहब, नज़ीर साहब, कोई बंदा आके बोलो टाक मास्टर साहब ते नशे च ने, ते जेड़े होश च तुसीं ते आके कोई जवाब दो ना यार, जिन्हें नशा नहीं। यार आ जाओ भाई। कोई आता ही नहीं आमिर नजीर भाई। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, बाकी सब दोबारा एक हाँ मुस्लिम कादियान की पासबानी के लिए। मुस्लिम और मुसलमान दोवें ही करो ना, मुस्लिम नहीं सिर्फ मुसलमान और मुस्लिम दोनों इकट्ठियां करो एक जगह से। दो हो मुस्लिम और मुसलमान कादियान की पासबानी के लिए, हैं तबलीग हो। आमिर भाई मुमकिन है उन्होंने बुराई ना नजर आती हो, बुराई तो उन्हें हो नहीं, बुराई तो है नजर होंदी जे भाई, की करते हो फिर? ए देखो वादे तरीन बुराई नजर आती, वादे तरीन बुराई नजर आती है भाई। हेलो टाक मास्टर साहब, नजर आई जे कि नहीं बुराई? लगता नशा उतर गया है नजर। बोले हैं पर समझ नहीं आई। मैं आख्या भी दोबारा नशा उतर गया। टाक मास्टर साहब जरा रोशनी तो डाले, इनू कुछ वेंदा है। वो कोई बकरा फड़ के ले आओ। मैं बकरा नहीं हैगा, मैं एंजॉय कर रहा है। हाँ जी, वो बकरियां ने पहले लाया है, मचान लाया, बकरा नेड़े नहीं आ रहा ना। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ। फतवियां तो मुफ्ती डरते ने भाई, मैं नहीं डरता, मैं कोई मुफ्ती थोड़ा है। नहीं किदों मुफ्ती ने तो डरिया ही नहीं है। वेखो मुफ्ती सादक किदों डरिया जे, उन्हें तो सब कुछ कड मारिया बाहर। एवें ना करया करो, जबड़ियां ना मारिया करो, सीधी सीधी गल करया करो साडे नाल। मुफ्ती डरदा है, मुफ्ती किदों डरे है? उन्हें तो दसिया, सब कुछ दसिया कि हजरत मसीह मूसा साहब किंजदे सन। मुफ्ती साहब कोई अच्छा जा शेर सुनाओ यार, छड्डो इन्ना चलना। अच्छा जा शेर, अच्छा चलो मैं फिर लभ लवां। मिर्जा साहब दे शेर सुनाने ना तुहानू। मिर्जा साहब भी चूंकि वो तुहानू पता है वो बन गए सन फरूख। मिर्जा साहब फरूख जदों एक कुड़ी दे इश्क दे विच गिरफ्तार हो गए सन, हैं ते वो फरूख साहब दे तुहानू फिर मैं शेर सुनाना वा, शेरो शायरी। मिर्जा साहब अपनी छोटी जी जिंदगी च किन्ने किन्ने काम कर गए? बड़े बड़े शराब की लत, शराब की लत जो पड़ी थी हजरत साहब को, यहाँ इस लड़की के इश्क पर ही पड़ी थी ना। ये ले जी शेर सुने जी, सीरतुल महदी सफा 213 हिस्सा अव्वल और कादियानियों की हदीस नंबर 228। खाकसार अर्ज करता है कि मिर्जा सुल्तान अहमद साहब से मुझे हजरत मसीह मूतरला शलवार की एक शेरों की कापी मिली है जो बहुत पुरानी मालूम होती है, गालबन जुआनी का कलाम है। हजरत साहब के अपने खत में है जिसे मैं पहचानता हूँ। बाज शेर बतौर नमूना दर्ज झैल। इश्क का रोग है क्या पूछते हो इसकी दवा, ऐसे बीमार का मरना ही दुआ मजा, ऐसे बीमार का मरना ही दुआ होता है। कुछ मजा पाए मेरे दिल अभी कुछ पाओगे, तुम भी कहते थे कि उल्फत में मजा होता है। हाय क्यों हिजर के अलम में पड़े, मुफ्त बैठे बिठाए गम में पड़े। हाय इसकी जाने उसके जाने से सब्र दिल से गया, होश भी वर्ताए अदम में पड़े। सबब कोई खुदावंदा बना दे, किसी सूरत से वो सूरत तो दिखा दे। हाय
ہائے نہیں رجو کرم فرما کے او میرے جانی ہائے نہیں جانی میری جانی میری جانی میری پٹولی بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے جانی کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر او دلیا ایک بار شور و گل مچا دے نہ سر کی ہوش ہے تم کو نہ ہے پخانے کی سمجھ ایسی ہوئی قدرت خدا کی میرے بت اب سے پردہ میں رہو تم کہ کافر ہو گئی خلقت خدا کی نہیں منظور تھی گر تم کو الفت تم یہ مجھ کو بھی جتلایا تو ہوتا میری دل سوزی سے بے خبر ہو میرا کچھ بھید بھی پایا تو ہوتا دل اپنا اس کو دوں یا ہوش یا جاں کوئی ایک حکم فرمایا تو ہوتا کوئی راضی ہو یا ناراض ہوئے رضامندی خدا کی مدا کر اس کاپی میں کئی شعر ناقص ہیں یعنی بعض جگہ مصرع اول موجود ہے مگر دوسرا نہیں اور بعض جگہ دوسرا ہے مگر پہلا ندارد بعض اشعار نظر ثانی کے لیے بھی چھوڑے ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کئی جگہ فرخ تخلص استعمال ہوا ہے فرخ اچھا یہی حوالہ سیرت المہدی صفحہ 200 حصہ اول کے اوپر بھی ہے کہ مرزا قادیانی جب شعر و شاعری کرتا تھا لڑکیوں والی گندی گندی تو اس ٹائم فرخ تخلص بناتا تھا اور ایک اور حوالہ آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے پورا دیوان ہے قادیانیوں کا اس دیوان کا ہی نام ہے دیوان فرخ قادیانی یہ سیرت المہدی صفحہ 237 حصہ اول ہے اور یہ دیکھیے ٹھیک ہے یہ اسی دیوان فرخ قادیانی کا ذکر کیا ہے تو ان قادیانیوں سے پوچھنا چاہیے بلکہ ٹاک ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں تو یار وہ دیوان فرخ قادیانی کہاں پر ہے کہاں سے ملے گا ہمیں یہ ذرا قادیانی ہمیں بتائیں اس کے بارے میں ہاں جی ان پڑھ مفتی بھائی آپ کو نا شعر بھی نہیں پڑھنا آتا شعر اس طرح پڑھتے ہیں آپ پڑھ کے سنا دیں ہاں جی میں کبھی عیسیٰ کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نہیں انج نہیں پورا تو کرنے دینا دل بری والا شعر ہونا چاہیے انج کر کے نا ٹانک وائن پھڑی ہوئے ہاتھ چ میں نواں بوتل ہوئے یا کوکو وائن ہوئے یا کوکو وائن ہوئے اے ٹن ہونا چاہیے بندہ بال بکھرے ہونے چاہیے نے تے ادو پھر شعر پڑھے عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا ایسے بیمار کا مرنا ہی دعا ہوتا ہے کچھ مزہ پایا میرے دل ابھی کچھ پاؤ گے تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزہ ہوتا ہے انج کر کے چس آنی چاہیے بھائی پوری چس بننی جے ہاں جی چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل چند چن دا اتنے کو نہیں ذکر ہے میں بچ جانا وہ پا چھڑیا جی اپنی طرف انج نہ کریا کرو یار مفتی صاحب بہت ہی ان پڑھ بڑے کھوچو قسم والی گل ہے تسی بڑے مزاحیہ ہو بہت ہی ان پڑھ یار کمال بڑے مزاحیہ ہو یقین منو وہ عامر نذیر بھائی کتنے گئے اپنے محترم مفتی صاحب نو سن دے ہی نہیں پے ایتھے رکھ نس گئے نے عامر بھائی تے او ذرا ماحول بنو نا انج کر کے شراب دی بوتل انج پھڑی ہوئے انج ٹانک وائن ہوئے یا کوکو وائن ہوئے چس آنی چاہیے کوکو وائن بہتر رہے گی کیوں ٹاک ماسٹر صاحب ہاں جی تسی تو عالم ہو بھائی کوکو وائن ہونی چاہیے کوکو وائن اے ویکھو نا جویں انج اے آئی بنی ہے کوکو وائن دے باہر انج کھلوتا ہونا چاہیے دکان تو باہر چرسیا اے کوکو وائن دی بوتل بھی ہاتھ پھڑی ہوئے نا تہاڈی اپنی فوٹو ہے نہیں ہے چرسیے دی ہے میری کتھوں پہچانو ہاں کون جے پہچان چ ہوندا ہے پیا چرسیا
ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਜੇ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਸੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀਏ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਕੋ ਵਾਏ ਨਾਲੇ ਬੁਲਵਾਏ, ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਵਾਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਥੜੇ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲੋ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ 100 ਦਫਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਜੜੇ ਹੀ ਪਾਏ ਸੋ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਵਾਲੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮਰਨ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੂ। ਓਹ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੋ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਟੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਟੁਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ, ਬਦਲਣ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਯਾਰ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। मुफ्ती साहब एक उन्होंने शायरी मिर्ज़ा साहब ने नुसरत जहाँ बेगम ते अपने सरजंद अर्जमंद वास्ते भी लिखे ने 2-3 शायर, अगर इजाजत हो सुना दें। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਲੋ। कहते ने मिर्ज़ा साहब अपनी जोजा माजिदा वास्ते कहते ने ऐसी औलाद पर खुदा की मार, ये ना औलाद कहरबारी है, नाम औलाद के हसूल का है, सारी शहवत की बेकरारी है, बेटा बेटा पुकारती है गलत, यार की इसको आहोजारी है, 10 से करवा चुकी जना लेकिन पाक दामन अभी बेचारी है, लाला साहब भी कैसे अहमक हैं, इनकी लाली ने अक्ल मारी है, घर में लाते हैं इसके यारों को, ऐसी जोरू की पासदारी है, इसके यारों को देखने के लिए सरे बाजार इनकी बारी है। बड़ा लंबा चौड़ा है माशाल्लाह, बड़ी अच्छा होना, बड़ी लंबी है। नियोग वाली है ना। जी जी मेरा ख्याल है मिर्ज़ा साहब ने नुसरत जहाँ बेगम नु अपने तखय्युल च रख के लिखी है शायद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यो है जी। सारे कादियानियां नु, सारे कादियानियां उन्होंने एक लाइन च खड़ा कर दिया। अच्छा टाक मास्टर साहब हेलो। वाह हेलो जी। एक टाक मास्टर साहब एक बात पूछनी है। आपको पता है कि मिर्जा कादियानी के नजदीक तुम सब लोग मुर्दार हो और तुम्हारी कब्रें बन गई हैं और तुम्हारे जनाजे मिर्जे कादियानी ने पढ़ दिए हुए हैं पहले के। पता है आपको कि नहीं इस चीज का? अगर ऐसा है तो अच्छा है यार, हम मुर्दे ही भले। सही हो गया। वैसे पता था कि नहीं है ये बताएं। नहीं मुझे तो नहीं पता था, जो पता होता है वो तो आपको ही पता होता है। हो सही हो। वैसे आप वो पूछें अपने किसी मुरब्बी शरब्बी से, उन्हें कहें यार कि भाई वो क्या माजरा क्या है, मिर्जा जी ने हमारे सारे सबके जनाजे आपने बता दिया है, आपने बता दिया है, आप मुफ्ती हैं तो आप झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, आप तो सच ही बोलेंगे। तो मैं क्यों ना यकीन करूं? ये तो है। ओहो फिर इल्मी किताबी गुफ्तगू ते बढ़ गई। आप तो कह रहे थे कोई इल्मी बात करनी है, तो मैं तो इल्मी किताब बात करने के मूड में था, तो आपने की को नहीं है, पता नहीं की है तो समझो बाहर है काम। आपको आपकी अनपढ़ी की सजा दी है, बस सिर्फ ये है कि आपको समझनी है। ये है, ये सही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी आसकानी भाई, आपके मुफ्ती भाई आए हुए हैं, क्यों आप सोए हुए हैं? हेलो आसकानी भाई। और यार हम तो आपको पैसे देते हैं इंजर्ड बनने के लिए, तो आप हमारी तरफ से कोई जवाब दें ना मुफ्ती साहब को।
1 महीने पैसे क्या लेट हुए हैं, आपने रास्ते ही बदल लिए। टाक मास्टर साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम टॉक मास्टर। नाम भी तो होगा। नाम मेरा है जी नवीद। नवीद? हाँ जी। अच्छा जी, तो इतना अच्छा नाम है नवीद, तो आपने ये टाक मास्टर, ये कोई नाम तो नहीं है। अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। वैसे मेरा जो नवीद नाम है वो असली नहीं है। अच्छा, वो भी निक नेम है। हाँ, वो यानी भी जैसे आप मिर्जा साहब ने ये 2 नंबरियां अपना करके आए तो करना की है टाक मास्टर साहब? ये कुकड़ू कड़ू ते असली है ना। मेरा नाम है असल मलिक इमरान। हाँ, ते कुकड़ू हर कड़ू बंदे नू पता है। कुकड़ू कड़ू रखा है तुसी है। ये तो शुगली मजाकन तौर पे रखे हुए हैं। यार मेरी बात वो इल्मी भाई से हो रही है, इल्मी मुफ्ती मुबश्शिर शाह। यार मुझे ये समझ नहीं आती, ये इंटरकॉन्टिनेंट में शाह किधर से आ गए हैं? जिनके आबाओ अजदाद हिंदू थे वो शाह बने बैठे हैं, अल्लाह माफ करे। हाँ, ऐसे ही है। ये जाके पूछे ना नुसरत जहां बेगम और मीर नासर को जाके पूछे। यार वो तो फौत नहीं हो गए। अच्छा, या मिर्जा कादियानी की दादी और दादे को जाके पूछे, चलो, क्योंकि वो मिर्जा कादियानी कहता है मेरी दादी पता नहीं परदादी वो कोई सैयदादी। सालों में जी, तो मिर्जा साहब का एक मंतर है ना, वो मंतर उनकी कब्र पे जाके पढ़े तो वो निकल आएंगे, मुर्दा बाहर निकाल के मिर्जा साहब की बातें करते। और मिर्जा भी तो मिर्जे को भी तो आप लोग सैयद ही मानते हैं ना। ये सीरतुल महदी है, सफा 23 है, हिस्सा 4 है। इनमें से एक सैयद है जो मिर्जा साहब हैं। तो मिर्जे ये पूछे ना इनको कि भाई हिंदुस्तान में हिंदुओं के अंदर सैयद कहाँ से आ गया? कभी सवाल नहीं किया आप लोगों ने मिर्जे कादियानी से? मुफ्ती साहब 2-4 सालों में ऊपर जाने वाला हूँ, जाके सारे मुर्दों से पूछूंगा, फिक्र ना करें। सारे मुर्दों से पूछना है तो अभी नहीं पूछना मिर्जे कादियानी? यार अल्लाह झूठ ना बुलवाए। यार आप ऐसे क्यों नहीं करते? एक मिनट नवीद भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मिर्जे कादियानी की कब्र के ऊपर गोबर डाले, गोबर, और मिर्जा कादियानी हो जाना है जिंदा? क्योंकि मिर्जा कादियानी ने ये नुस्खा बताया ना मुर्दे को जिंदा करने का कि भाई उसको गोबर के अंदर दब दो तो वो जिंदा हो जाएगा। यार हम तो जब वो जिंदा हो जाए तो उससे ये चीजें पूछ लें, ये काम बेहतर नहीं है? हम तो ना, बात ये है अनपढ़ मुफ्ती भाई, बात ये है कि हम तो उनको नबी मानते हैं, क्या यही शेवा आपका भी है? नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा ना, हम तो नहीं मानते, हम तो उसको ठुठ भी नहीं मानते, हम तो उसको खंजीर से भी बदतर समझते हैं, लेकिन आप तो नबी मानते हैं ना। तो भाई आप के नबी, आपका मुंह बोले नबी ने ये बात कही है तो कम से कम उसकी तो माने। मैं यही कह रहा हूँ बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम तो उसको नबी मानते हैं, आप जिनको नबी मानते हैं उनके साथ यही सलूक करते हैं? नहीं, हमारा मजहब कुछ और कहता है, आपका मजहब कुछ और कहता है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, दीन में फर्क हो गया ना। ओहो, माशाल्लाह, इसी जुबान से आप कुरान की आयतें भी पढ़ लेते हैं। तो यार पहले मुंह को वुजू तो करा लें। यानी मिर्जे कादियानी की बात करने के लिए वुजू करना पड़ेगा? हाँ, नहीं, कुरान की बात पलीत हो जाता है। हाँ, आप इसी मुंह से, यार इसी मुंह से आप कुरान पढ़ लेते हैं बशीर भाई। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। ये कोई इरादा ते करो यार, मिर्जे कादियानी दी कब्र दे उत्ते गोबर ते पाओ, कोई एक पूरी ट्राली पानी जे। यार ये मुंह है इस काबिल के इसमें से कुरान के मुंह नाल पाना जे गोबर, क्या हथा नाल पाना जे? एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। एक ते हो गए ने हजे, हुण एक कीते ते ऐसा नसा
पहले इसका तो कोई हल निकाले यार, कि जब गुलहरी गोबर के अंदर मार के उसको सोटे आप दफनाएं तो वो जिंदा हो जाए, तो इंसान क्यों नहीं जिंदा हो सकता? यार ये आमिर वहाबी पक्का काफिर कहाँ चला गया मुफ्ती भाई? हाँ जी, वो भाभी साहब चले गए, उनको थोड़ा सा काम है। तो बड़े बड़े काफिर है मुफ्ती, ये जो है क्या कहते हैं भाभी। अच्छा ये इसका कोई हल भी तो निकाले ना यार आप। नहीं तो वो ये जो सीरत ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा 171 चश्मा मार्फत के अंदर ये लिखा हुआ है कि कुदरत इलाही में से एक ये भी है कि जब एक गुलहरी को पत्थर या सोटे से मारा जाए और फिर वो बज़ाहिर बिल्कुल मर जाए, अभी ताज़ा हो, तो अगर इसके सर को गोबर में दबा दिया जाए तो चंद मिनट में वो जिंदा होकर भाग जाती है। ये तो अगर वो गुलहरी, मुर्दा गुलहरी जिंदा हो सकती है, तो मिर्जा जी को जिंदा होते क्या मसला है? मिर्जा कादियानी की कब्र के ऊपर भी गोबर डाले कोई, तो हो सकता है वो जिंदा हो जाए। तो बाद में उससे पूछ लीजिएगा। अब आपके जाने का इंतजार करें, आप कब मरें और जाके जहन्नम के अंदर मिर्जे कादियानी से पूछें, और वापसी कैसे आएंगे, हमें कैसे बताएंगे? फिर स्यापा पड़ जाना है। तो दुनिया वाला काम दुनिया के अंदर इन बेड़े ना, अभी उसकी कब्र के ऊपर डालें गोबर, उसको करें जिंदा, जिंदा करके उसको पूछ के हमें बता दें। बस चटपट वाले काम है इधर, तो बस जल्दी जल्दी, इतने वक्तों में तो नहीं ना डालना आपने हमें जी। ताक मास्टर साहब, नवीस साहब, मैं जरा चाय पी लूंगा। सानू तुसी मैं नवा असी फिर ना ही समझिए फिर। चलो जी फिर जाने असी भी कोई चाह शाह पकाइए ते पीए। रब रखा भाई दोस्तों, और तो कोई कादियानी आ नहीं रहा, ते एक कादियानी ढाए चढ़िया सी, वो चाह पींदा पिया, ते असी भी चाह पीए जाके। यूसफी बैठा है, मैदान मार लिया, हुण तुसी जाओ। यूसफी तसल्ली नाल सौ जाओ। और यूसफी पीछे टुर गया। अहमद आया है कि नहीं? अहमद अद्धा घंटा हो गया तेन, ठीक हो गया। आसकानी साहब बैठे ने? आसकानी साहब? हाँ जी, वहाबी आसकानी बैठे। यार कोई एक बंदा तो पीछे होना चाहिए, मैं जाना है भाई। हेलो कोई भी कोई नहीं, चलो भाई रब रखा फिर। टाक मास्टर साहब ये लाश हाफिज, क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमा, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है, और ये फितने सर उठा रहे हैं, और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमा गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं, और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम से कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमा के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है, और जामिया खत्म नबूवत
बनना चाहिए, और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज़ कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।